Please tell me what we have covered today. Yesterday, what we have covered? Sir, we have discussed power, distributive power, collective power, intensive power, extensive power, diffused power in last. Acha, all these things we have covered. Yes, sir. एक सेकंड में बहुत सारा विंडो सिक्योरिटी विंडो ये विंडो सब खोल के देखना पड़ा. I have even tried to restart my system couple of times, but then I was not able to understand what is the problem. It was not even connecting to the internet, and it is the internet is working, broadband is working, and then on the device it was not able to connect. Give me a moment, please. So what we have been actually discussing in the power, politics and state, जब आप इसको दिखाएंगे या देखेंगे तो आप पाएंगे that we have taken up different kinds of viewpoints, so that यदि एग्जामिनेशन हमसे पूछता है कि नेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, पावर एंड पॉलिटिक्स, इसमें क्या कनेक्शन है, and especially if the question comes up from the perspective of developing countries like India, then bringing certain elements from the newspaper points, we have to make sure that we are explaining the concept in simple words. Okay, सबसे important बात ये है. Yesterday and even last couple of areas we have covered that Mr. Mann, we were talking about Mann, if I remember correctly, कि Mr. Mann ने कुछ आइडियाज दिए थे, उसके बाद कुछ और भी आइडियाज रह जाते हैं, जैसे कि thinkers give their own ideas. For example, there was a gentleman called Michel Foucault. I'll write the name. हम देखेंगे कि उसने कौन सा पॉइंट दिया. दिख रहा है आपको, सुनाई दे रहा है? आंचल जी, सरस्वती जी, ब्रिजबाला जी, ऑडियो या वीडियो में कोई इश्यू है तो बताइए. फाइन सर. ब्रिजबाला जी, सरस्वती जी, आपको कोई इश्यू? और किरण जी भी तो थी, किरण जी से तो मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने मैसेज भी डाला था. हाँ, मैंने उनको मैसेज भी डाल दिया सोशियोलॉजी ग्रुप में. ओके, सो माय पॉइंट इज, जो मिशेल फौकॉल्ट है, हम लिख सकते हैं या हम सिंपल 2 लाइनों में बता सकते हैं कि ही सॉ पावर. उन्होंने क्या देखा पावर में? ही सॉ पावर as a part of all social relationships. He saw power as a part of all social relationships because he believed that power and knowledge are intimately linked with each other. Power and knowledge are intimately linked with each other. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? And they produce each other. Therefore, development takes place in a specific direction. Discourse takes place in a particular direction,
because power will not only be restricting people, but also enabling them to do things. That is how he gives the concept of madness and civilization. He gives the concept of madness and civilization. अरे कोमल भी नहीं है आज तो. Where is कोमल? हाँ, through which he describes that poverty, unemployment, and madness was seen as social problem only from the beginning of the 18th century. Only from the beginning of the 18th century, because before that, state did not interfere into such issues. State did not interfere into such issues. है ना जी, आप जैसे मर्जी रहो, जो मर्जी करो. State is not stopping you. State is not bothering you. Okay? आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको? Can you hear me? Where are all of you? बोलते रहो भाई. वीडियो भी Yes, बंद. sir. बोलो, पता क्या चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है. अच्छा, आंचल जी कह रहे हैं कि वो इन्वायरमेंट क्लास ले रही हैं. अच्छा, उन्होंने सोचा यहाँ पे नहीं चलेगी तो वहां ले लेंगे. ओके, दैट्स नॉट बैड. ओके, कोमल की बात कर रही हो तुम या किरण की बात कर रही हो? ओके, क्या हुआ सरस्वती जी, आज आप खुश हैं? अनम्यूट करके बोलो. कुछ नहीं तो सर। ऐसे ही खुश रहो और इन एनसीईआरटी और बाकी सारी चीजें पीजिए. हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे. न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली? सर कभी अरे कभी हाँ ना में स्किप हो जवाब दो जल्दी. कभी कभी स्किप हो जाता है. पॉइंट्स भी बनाती हो? पॉइंट्स भी बनाती हो? नो सर। हाँ, कोई बात. सो हमने बोला कि उन्होंने बोला मैडनेस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, दे वर नॉट रिलेटेड विद स्टेट बिफोर द 18th सेंचुरी. क्योंकि नेशन स्टेट का जब कॉन्सेप्ट आता है तभी ये चीजें होती हैं. ओके, देयरफॉर उन्होंने क्या बोला? देयरफॉर in case of Europe, a new culture developed. With a sense of responsibility for social problems. Social problems जो हैं उनको समझने के लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होने लगी स्टेट के अंदर. एक जिम्मेदाराना व्यवहार होने लगा. एंड न्यू वर्क एथिक. एक न्यू वर्क एथिक भी हो गया. इसीलिए आज हम कहते हैं ना लेजीनेस. आप लेजी हो तो इसको एक तरीके से सिन माना जाता है. आलसी को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था. अगर एक एग्जाम्पल से देखा जाए
अगर हम इतिहास को भी पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास को भी, तो हाँ, राजाओं में और प्रजा में बहुत सारे गुण बताए गए हैं, लेकिन सोशियोलॉजी के एंगल से अगर देखा जाए तो यूरोपियन कल्चर में पहले ये बात 18वीं सेंचुरी की बात हो रही है कि क्या चीज कैसे होनी चाहिए, ये स्टेट पावर की जब हम बात करते हैं। इसीलिए क्या डेवलप होगा, आप लिख सकते हैं, न्यू डिसिप्लिन लाइक साइकेट्री, मनोविज्ञान, न्यू डिसिप्लिन लाइक साइकेट्री वर डेवलप्ड। एंड इन दिस प्रोसेस क्या हुआ इसके दौरान, द डिस्कोर्सेज ऑफ सोशल साइंस, यानी जो सोशल साइंस के जो डिस्कोर्स हैं, जो उसके एक तरीके से आप कह लीजिए जो उसके करने का जो तरीका है, जो सब्जेक्ट बनाया जा रहा है, जो सिलेबस बनाया गया, जिस तरीके से चीजें हुई, द डिस्कोर्स ऑफ सोशल साइंसेज केम टू बी इन्वॉल्व इन पावर रिलेशनशिप्स। सोशल साइंसेज के साथ क्या जुड़ गया, पावर जुड़ गई, पहले नहीं जुड़ी हुई थी। अकॉर्डिंग टू मदन स्वरूप, अकॉर्डिंग टू मदन स्वरूप, हेयर डिस्कोर्स मीन्स प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस दैट सिस्टमेटिकली फॉर्म द ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच दे स्पीक। जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उसी की है, उसी की बात है। जैसे साइकेट्री में हम बोलेंगे तो मेंटल इलनेस की बात हुई, साइकेट्री एक तरीके से हो गया भाई मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। आप वहां गए, एक डिस्कोर्स है, और आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप के पॉपुलेशन को आपने बोला भाई ये तो ऐसे बीमार है, मानसिक रोगी हैं, और आपने क्लासिफाई कर दिया। यानी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी, यानी प्रशासन में भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। कैसे कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं, दीज डेवलपमेंट्स, ये जो विकास हुए, ये दीज डेवलपमेंट्स अलाउड द मॉनिटरिंग ऑफ द पीपल, these developments allowed monitoring of the people, लोगों को मॉनिटर किया जाने लगा, monitoring of the people, and also offered chances to control their behavior. ये एक एग्जाम्पल है जो हमने दिया। आज की डेट में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस प्रकार के। मेडिसिन में देख लीजिए, मेडिकल के हिसाब से देख लीजिए, आप डूज एंड डोंट्स के हिसाब से देख लीजिए। सिमिलरली he discussed the concept of discipline and punish. तो स्टेट ने क्या किया है, discipline and punish. Similarly, he talks about the concept of discipline and punish, where with time punishment has been increasingly hidden. पनिशमेंट धीरे धीरे क्या है, आज की डेट में यदि किसी को जेल में भी डाला जाता है तो आपको दिखाया थोड़ा ना जाता है उसका वीडियो तो वो आते हैं भाई वो सुट्टा पी रहा था, दारू पी रहा था, मोबाइल यूज कर रहा था,
एक्चुअली में जो है वो तो नहीं दिखता ना। इवन पब्लिक हैंगिंग भी नहीं है इंडिया में, वरना पेड़ से टांग दो, जैसे अभी पाकिस्तान में होता है। कोई ब्lasphemy का केस आ जाता है, किसी ने कुरान या इस्लाम का अगर अनादर किया है तो लोग ही मार देते हैं उसको, लिंचिंग करके एकदम छोड़ते ही नहीं है। लेकिन अब अगर आप बड़े स्टेट्स की बात करो, डेवलप्ड स्टेट्स की बात करो, तो पनिशमेंट बड़ी हिडन है। आपको वर्क कराया जाएगा, आपको कुर्सी बनवाई जाएगी, आपको बाकी काम कराए जाएंगे, आपका टाइम टेबल होगा, आपका पढ़ने का होगा। तो आप ये बात को, इसको यहाँ एंगल को लाइए। एंड देयर इज लॉस ऑफ लिबर्टी, देयर इज लॉस ऑफ लिबर्टी। Therefore, state is using these elements as a deterrence. सर एलिमेंट की बात क्या बोला आपने? Therefore, these elements act as a deterrence. ये deterrence की तरह है, दूसरे आदमी को डराते हैं कि भाई तेरे साथ भी गलत हो सकता है। And the goal is to reform the prisoners, मतलब reform the goal is to reform the people. तो अप्रोच आज की क्या है? रिफॉर्म हो जाए, चीजें सुधर जाएं, ना कि उसको बस मारपीट के चीजें वो कर दिया जाए। आप एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे। इंडिया भी अपना अभी जो एक क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल आया है अभी, इफ यू हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर्स इन द पार्लियामेंट, जुडिशियल सिस्टम के क्राइम क्रिमिनल जो हमारा सिस्टम है उसको थोड़ा और ज्यादा रेशनल बनाने के लिए, थोड़ा उसको और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक बिल आए हैं। आप देखिएगा उसको, तो वो यहाँ पे लिंक हो सकता है। सो Foucault believes that apart from negative, there are there are positive there are positive aspects also. There are positive aspects also where punishment can motivate workers to make more efforts and provide labor power to the society. है ना? क्यों जी? प्रिजनर हमारे भरे पड़े हैं किसी से। हाँ बिल्कुल, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो सकता है। आप देखिए, हम चाहते हैं प्रिजनर्स कुछ काम करें, प्रिजनर्स कुछ समझें, प्रिजनर्स कुछ चीजों को देखें, ऐसा हम प्रमोट करना चाहते हैं। सिमिलरली, Foucault talks about the role of state. The role of state in creating an institution of discipline. हाँ, डिसिप्लिन कैसे? थ्रू टेक्निक्स ऑफ सर्वेलेंस।
सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं जेल में। जेल में बीच में एक टावर होगा बड़ा सा, टावर के ऊपर जो है संतरी खड़ा होगा, लाइट ऐसे घूमती रहेगी, सर्च लाइट मूवीज में ही पहले दिखाते थे, फ्लैश लाइट सर्च लाइट चलती रहेगी। तो ये सारे क्या है, गवर्नमेंट के पावर है। बाहर नहीं आप जा सकते, एक जेल दूसरी जेल तीसरी जेल ऐसे होता है। बात समझ आई सरस्वती जी, बात समझ आई? कौन सी दुनिया में हो? यही हूँ सर। वो डिसिप्लिन टेक्निक्स ऑफ सर्वेलेंस हो गई, सीसीटीवी कैमरास हो गए, तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मास्क का भी है, मास्क का जैसे आ गया भाई, आज से आप मास्क नहीं पहनोगे तो 500 रुपए का चालान होगा। तो अब इसलिए नहीं आदमी मास्क पहन रहा कि मेरे को कोरोना होगा नहीं होगा, अब पहनना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो चालान होगा। कोरोना तो मान ही नहीं रहे लोग, बहुत सारे तो अभी भी बोल रहे हैं भाई हम तो वैक्सीन भी नहीं लगवाएंगे और हमें जो है वो भी नहीं है। दैट मीन्स that means Foucault promotes, no, Foucault believes in the idea that humans have a soul that can be manipulated. Humans have a soul that can be manipulative, and it is far more effective. It is far more effective method it is far more effective method than to punish, than to give physical punishments. Therefore, discipline is the key for regulation. Discipline is the key for regulation. ठीक है जी, बिना रेगुलेशन के होगा नहीं, और प्रशासन को तो डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए। चेंज द पैराग्राफ। Jean, Jean Baudrillard। हिंदी में अगर नॉर्मल बोल रहे हैं तो आप बोलोगे जीन बॉड्रिलार्ड, पर ये फ्रेंच है। Talks about end of politics. Talks about the end of politics. Where he says that where he says that words and symbols, where he says that words and symbols do not reflect reality. Do not reflect reality.
because they are manipulative, because they are manipulated. For example, for example, in a multi-party system in democracy, in a multi-party system in democracy, there may be no difference between different political parties actually. सब एक जैसे हम कहते हैं सारी एक जैसी हैं, ये एक जैसा है, वो एक जैसा है, that is what we say. There may be little difference between different political parties. Similarly, is example of Hiroshima bombing, Vietnam War. Okay. तो उनका यही कहना है कि तमाशे हो गए हैं, रियल पावर खत्म हो गई है, हर चीज का एक, जैसे अब रशिया यूक्रेन वॉर है, उसका एक अलग मतलब है, जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, हो कुछ और ही रहा है। तो यहाँ हमने किसकी बात की? यहाँ हमने बात की बॉड्रिलैर्ड की। वो ऐसा कहते हैं। एक दो लाइन हम एक और बंदे के बारे में बता सकते हैं, ये बड़ा फेमस नेम भी है, जीन फ्रेंकोइस लेओटार्ड। हमने जब मेथोडोलॉजी की थी तो हमने इनकी बात की थी, जीन फ्रेंकोइस लेओटार्ड की हमने बात की थी। मैं नाम लिख देता हूं। लेओटार्ड आपको याद होगा, हमने बोला था। सबसे ज्यादा आपको लेओटार्ड एक आध बार कभी शब्द आया हो? हमने बोला था। तो इन्होंने क्या बोला है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है? जीन फ्रेंकोइस लेओटार्ड टॉक्स अबाउट डिक्लाइन ऑफ मेटा नैरेटिव्स। एक हमने शब्द यूज किया था मेटा नैरेटिव्स, शुरू में भी हमने कहा था कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े खेल, बड़ी बड़ी चीजें, उनका कोई वो नहीं है, सबका अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। मेटा नैरेटिव्स का जमाना चला गया पोस्ट मॉडर्निज्म में। मेटा नैरेटिव होता है सब लोग एक ही बात को उसी तरीके से मानते रहे, सभी एक ही बात को बड़े तरीके से फॉलो करते रहे, यू नो। सो इट इज एसोसिएटेड विद डिक्लाइन ऑफ मेटा नैरेटिव्स, डिक्लाइन ऑफ मेटा नैरेटिव्स। That means people no longer, that means people no longer place faith, people no longer place faith in the big stories about how the world works. Big stories about how the world works. ठीक है ना? That means they lose their faith and belief. That means they lose their faith and belief in
big political ideologies. And therefore information and knowledge is constantly evaluated. यानी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसको हर तरीके से, जैसे आप अपनी ही स्टडीज को देख लीजिए। पहले एक था ऐसे पढ़ते हैं भाई, ऐसे पढ़ोगे तो हो जाएगा, ऐसे ही होता है। उसको चैलेंज किया गया, अपना एक तरीका निकालने की बात की गई। आपको अपना तरीका निकालना पड़ेगा, आपको चीज को एक तरीके से करना पड़ेगा। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ही इज टॉकिंग पोस्ट मॉडर्निज्म में, या आप कह लीजिए मेटा नैरेटिव के डिक्लाइन का एक पार्ट है। यूजफुल नॉलेज कैन बी अवेलेबल एनीवेयर, and it can be used by individuals for different purposes. It can be used by individuals for different purposes. लेकिन ऐसी भी कंट्रीज हैं, क्या मुझे एक कंट्री का एग्जांपल बता सकते हो सरस्वती, जहां पर अभी भी मेटा नैरेटिव ही चलता है? एशिया की ऐसी 2 कंट्रीज के नाम बताओ जहां पे मेटा नैरेटिव चलेगा, जो बोला जाएगा वही माना जाएगा। बताओ। साउथ कोरिया नहीं ब्रिज बालाजी, आपने गलत बताया, नॉर्थ कोरिया। सही सोचा किंतु गलत बता दिया, नॉर्थ कोरिया। एक और कंट्री बताओ सरस्वती। हाँ, सोच क्या रही हो, जल्दी बोलो ना यार। रशिया, हाँ रशिया बोल सकते हो आप, थोड़ा बहुत मेटा नैरेटिव भी चल रहा है वहां पे अभी तो। ईरान, ईरान भी एक एग्जांपल है। जो कह देंगे आयतुल्ला खुमैनी साहब, या जो मालदीव्स में नैरेटिव नहीं है, मालदीव्स अब तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर भी थोड़ा डेमोक्रेसी होगा, वहां पर चीजें थोड़ी डिफरेंट होगी। हम तो एक एग्जांपल देने की बात कर रहे हैं। चेंज द पैराग्राफ। नैन्सी फ्रेजर, नैन्सी फ्रेजर talks about the role of, नैन्सी फ्रेजर की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। नैन्सी फ्रेजर talks about the role of public sphere in the postmodern times. Public sphere बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक स्फीयर, which is based on the fact that democratic debate is possible. Democratic debate is possible between different people. People having same concerns can come together. And तीसरा, people discuss what is required for public interest. जैसे आप लगा लीजिए ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, मी टू मूवमेंट, ये सारी चीजें ऐसी हैं। आजकल जैसे है, अभी भी नहीं उठा पाते, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, या हिंदी माध्यम है, या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ है, लेकिन पब्लिक डिबेट की बात हो रही है। पब्लिक स्फीयर में पब्लिक डिबेट हो सकता है,
और वो जो है मदद करेगा। बट फ्रेजर सेज दैट even bringing your private interests can later on become public interests. Can later on become public interest. आपने सोचा मेरा फायदे की बात है, मैं क्यों उठाऊं, लेकिन हो सकता है ना आपकी बात को उठाने के बाद से बाकी 4 बातों में भी वो बातें आएंगी और वो फायदा हो सकता है। That is why Fraser believes in pluralistic politics. प्लूरलिस्टिक यानी जितना अधिक हो सके उतना ब्रॉड रखिए, प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स। साथ में आप सोचिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बाय द पीपल, thereby bringing different issues. Therefore, this idea by Fraser of power and politics of postmodern theories is a reflection of example that different themes are there which are linked with each other, and they led to emergence of new social movements. ठीक है, नए तरह की एक सामाजिक चेतना, एक सामाजिक, जैसे आजकल हिंदुत्व की हम बात करते हैं, डिबेट करते करते एक मूवमेंट ही बन गया। क्या सही है क्या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन अब जो है चीजें, अयोध्या हो गया, ये हो गया, वैसे हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हिडन था, 10 साल पहले, 15 साल पहले। अब आप देखिए चीजें कैसे हैं, बिल्कुल बदल गई हैं, एक नैरेटिव चेंज हो रहा है। तो आप उससे लिंक करके देखिए। न्यू सोशल मूवमेंट, द कॉन्सेप्ट गिवन बाय सिमोन हेल्सवर्थ ने कॉन्सेप्ट दिया नई सामाजिक आंदोलन का। नए सामाजिक आंदोलन विच विल इंक्लूड, बताओ क्या आ सकता है उसमें नए सामाजिक आंदोलन में, बताओ सरस्वती। नए सामाजिक आंदोलन कैसे हो सकते हैं, किसकी बात करेंगे वो? जी की बात करेंगे। किसकी? चेंज। हाँ चेंज, लेकिन क्या टॉपिक बोलो ना, सब्जेक्ट बोलो। सर बहुत से चेंज हो सकते हैं सोसाइटी में, जैसे फेमिनिज्म, इन्वायरमेंट, एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट, सिविल राइट्स, ये सारे क्या है? न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं। न्यू सोशल मूवमेंट्स पर्यावरण का इशू उठाएंगे, एनिमल राइट्स की बात करेंगे, ग्रीन पीस है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब न्यू सोशल मूवमेंट्स का ही पार्ट है। ओके, एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसमें यंग लोग जुड़े होंगे, जैसे ग्रेटा थर्नबर्ग का है, 16 साल के, 30 साल के, 25 साल के। दूसरी बात क्या होगी, वो न्यू मिडिल क्लास से आएंगे, मिडिल क्लास होंगे। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है, उनके पेरेंट्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, उनके मतलब उनके पेरेंट्स।
और क्या हो सकता है? अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा हो सकते हैं, डाइवर्स होती हैं ऐसी नई मूवमेंट, फ्रेगमेंटेड भी होती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती है नेचर में। लेकिन क्या वो अपने लिए पावर ढूंढती हैं? अपने लिए पावर नहीं ढूंढती। ठीक है, ऑन दीज अबव फैक्टर्स, जो मैंने अभी बोले, ऑन दीज अबव फैक्टर्स, a process is defined, a process is defined in terms of postmodernism. पोस्टमॉडर्निज्म के तहत एक प्रोसेस डिफाइन किया गया, गिवन बाय क्रूक, पॉक्लस्की एंड वेटर्स, या वाटर्स कह लीजिए। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि नई पॉलिटिक्स आएगी, पुरानी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, सेक्शनल इंटरेस्ट खत्म हो रहे हैं। इंडिया के केस में भी चेंज आ रहा है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आएगा। न्यू पॉलिटिक्स है। न्यू पॉलिटिक्स क्या है? न्यू पॉलिटिक्स है कि सेक्शनल इंटरेस्ट, जो एक सेक्शन है उसके इंटरेस्ट को लिया जाएगा, मोरल मोरल आइडिया, मोरल इश्यूज भी उठाए जाएंगे, लोगों के लाइफस्टाइल से लिंक किया जाएगा, लाइफस्टाइल विल बी लिंक्ड, पीपल्स पॉलिटिकल व्यू विल बी लिंक्ड विद देयर लाइफस्टाइल। elite groups will have less role because everyone will become part of the campaign. इंडिया के केस में आप देख लीजिए, वो इंस्पायर नहीं करेंगे। ओके, एंड और क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सिविल सोसाइटी होगा। So all this is happening, all this is happening because of class decomposition. All this is happening because of class decomposition. एक प्रोसेस उन्होंने बोला कि भाई क्लास डिकम्पोजिशन हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है? क्लास डिकम्पोजिशन एंड प्रोग्रेसिव सोशल डिफरेंशिएशन। प्रोग्रेसिव सोशल डिफरेंशिएशन, ये दो चीजें हो रही हैं। चेंज द पैराग्राफ। सिमिलरली एंथोनी गिड्डन्स, जिनका हमने बात की भी थी, एंथोनी गिड्डन्स टॉक्ड अबाउट मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज। वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की बात करते हैं, एंड अ टर्म उन्होंने यूज की, हाई मॉडर्निटी। अ टर्म हाई मॉडर्निटी इज यूज्ड बाय हिम, हैविंग 4 institutional dimensions. One is capitalism. उन्होंने बोला कैपिटलिज्म है इसका एक डायमेंशन, जो हमने पहले बोला था। कैपिटलिज्म इज सिस्टम ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन। कैपिटलिज्म क्या है? सिस्टम ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन। एक उन्होंने बोला कैपिटलिज्म इसका पॉइंट है। दूसरा उन्होंने बोला इंडस्ट्रियलिज्म। मटेरियल गुड्स बनेंगे, चीजें बनेंगी, क्योंकि वो भी एक तरीके से पावर है, इंडस्ट्रियलिज्म। अभी आज आ रहे हैं आपके बोरिस जॉनसन साहब, अभी अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। तीसरा हो गया सर्वेलेंस। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं,
वर्क प्लेस के ऊपर सर्वेलेंस है, प्रिजन में सर्वेलेंस है, स्कूल के बाहर सर्वेलेंस, स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में सीसीटीवी लगे हुए हैं। चौथा आ गया आपका मिलिट्री पावर। ये चार चीजें हो गई, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, सर्वेलेंस, मिलिट्री पावर। तो ये चारों के एंगल में ही हम सब कुछ बढ़ते हैं। इन चारों में जो भी एक चीज बढ़ जाएगी उस तरफ आपका सोशल मूवमेंट बढ़ जाएगा। भाई जैसे लेबर मूवमेंट है, अब लेबर मूवमेंट इज इज पैरेलल टू कैपिटलिज्म। एक तरफ कैपिटलिज्म बढ़ता है, एक तरफ लेबर मूवमेंट बढ़ती है। सर्वेलेंस का पैरेलल क्या हो गया? फ्री स्पीच हो गई। मिलिट्री का डेमोक्रेसी हो गया। इसीलिए गिडन साहब क्या कहते हैं कि और भी चीजें हो रही हैं आज के समाज में। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया पीस मूवमेंट्स। एक उन्होंने पीस मूवमेंट बोला, एक उन्होंने इकोलॉजिकल मूवमेंट बोला। दोनों ही चल रही हैं। एंटी वॉर मूवमेंट्स भी हैं, आप देख लीजिए अभी इतनी सारी। एंटी न्यूक्लियर वॉर भी हैं और इकोलॉजिकल मूवमेंट भी चल रही हैं। लेकिन जो भी ये बातें कह रहे हैं, इतना इंपीरिकल हमने उसको देखा नहीं। इतना इंपीरिकल नहीं है वो, जितना इंपीरिकल होना चाहिए। समझे मेरी बात को? उन्होंने आइडियाज दे दिए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दे दिए, लेकिन इतना ज्यादा उन्होंने उसको इंपीरिकली स्टडी करके, रिसर्च करके नहीं बताया। अगर आप बात करें इसकी, ठीक है जी। बोलिए Yes, sir. ब्रिजवाला जी, कोई डाउट? हाँ, हेलो ब्रिजवाला जी। ओके, अब मतलब इसमें इतनी सारी चीजें, पावर और पॉलिटिक्स में इतना डिबेट है और इतने सारे इसमें वेरिड है। हमने उसका बेस ले लिया, हमने उसका पूरा बेसिक ले लिया, हमने उसके नेशनलिज्म वाले एंगल ले लिए, हमने ब्रॉड ब्रॉड सारे एरिया भी इसमें कवर कर लीजिए, कवर कर लिए, और हमने उसके अंदर आज के टाइम का भी ले लिया। अब हम एक काम बस करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं उसे हम देखना चाहेंगे, ताकि हमारा अगर कोई एलिमेंट मिसिंग है तो हम उसको भी आपके एंगल से देख सकें। आप 1 मिनट के लिए क्वेश्चंस को चेक कीजिए, ताकि अगर हमें लगता है कि सम एलिमेंट और सम डायमेंशन वी आर मिसिंग, वी विल जस्ट पिक इट अप। क्योंकि ये सारी चीजें डिटेल में जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स या इधर तो अवेलेबल कहीं नहीं है। इट इज अ वेरी ब्रॉड एंड वेरी वेरी डायनेमिक टॉपिक। तो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, ताकि हम फिर उसको उसी हिसाब से हम उसको कंक्लूड करें। आप 1 मिनट क्वेश्चन देखिए सब लोग, जो क्वेश्चन आए हैं, फिर हम इस पे आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो हमने जो है ये कॉन्सेप्ट को हमने ब्रॉडली ले लिया है। अब इसको लेने के बाद अब हम जो है इसको हमने मोटा मोटा फिनिश किया है, लेकिन अब कुछ और मुद्दे, जैसे अभी आपने बोला, जैसे अभी हम बात कर रहे थे भाई कि ये है, ये हम कैसे वो करें, उसको हमें देखना है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स ले लिए हैं, हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं उसमें। क्या समझे? पावर, पॉलिटिक्स और स्टेट का जितना थियोरेटिकल और जितना ब्रॉड हो सकता है वो हमने ले लिया है। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स और रिवोल्यूशन हो गया जैसे, या फिर ये हम देख लेंगे कल। स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी हम कर चुके हैं। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का हमने मोटा मोटा कर दिया, लेकिन रिवोल्यूशन, सोशल मूवमेंट इन इंडिया है जैसे, उसके लिए किताब है, उससे हम देखेंगे MSA राव की। फिर हमारा रह जाता है रिलीजन एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ किंगशिप और सोशल चेंज एंड मॉडर्निटी। फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट। क्यों जी?
बोलिए। Yes, sir. तो जो रहने वाले पॉइंट है वो है आपका पॉलिटिकल सोसाइटी का है बेसिकली। उसमें जो कुछ चीजें बची हुई है मैं उनको भी पूरा करना चाहूंगा, रिवोल्यूशन, एक्शन और ये सारी चीज जो हमने बोली ना। ठीक है जी। आंचल जी, ब्रिजबाला जी, मेरी बात समझ आ रही है आप दोनों को? Yes, sir. तो कल के टॉपिक में कल हम करेंगे जो इसका बचा हुआ पार्ट है ना, एक्शन, रिवोल्यूशन, सिविल सोसाइटी, ये सारी चीज हम कल उसको टच करेंगे ताकि वो वाला पार्ट भी हमारा कवर हो जाए। ओके, अभी हम कोई Yes, नया sir. नहीं शुरू करेंगे, कल ही हम उसको फिर कवर करके करते हैं। अभी तक जितना हुआ है इसको आप कंसोलिडेट कीजिए, इसको आप रिवाइज कीजिए। और ब्रॉड है ये, काफी सारे थिंकर्स और काफी सारी चीजें बताई हैं मैंने इसमें, उनको आप एक बार पूरे को स्ट्रक्चर बनाइए। थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है लेकिन इट इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन रेजिंग योर लेवल ऑल्सो। उसको फिर हम देखते हैं। ठीक है जी। Yes, sir. और कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं दोनों लोग। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, बोलिए। जी, ब्रिजबाला जी, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? आंचल जी, आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? हाँ, both of you are audible to me? Revising previous lectures. After that, we will ask. Okay, all the best to both of you, and we'll see you. Okay, sir. Thank you, sir. Bye bye. Bye, sir.